today's topic is your response spectrum analysis. So I'm just going to create. Well, in the last session, I think आपको याद होगा मैंने सारे डिटेल्स आपको दिखाई हुई थी कि किस तरीके से मैंने सारे फाइल शेयर की हुई थी. So I have to join with my second ID also, so that I will show you both things. जिससे मैं आपको दोनों चीजें डिनोट कर सकूंगा. Just wait. मैं अपने एक आईडी से इसको आपके ग्रुप को मीटिंग कोड ज्वाइन कर ले रहा हूँ. इसलिए मुझे सिस्टम चेंज करने की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है. आई विल ज्वाइन इट जब मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं कर लेता हूँ. अभी मैं आपको स्टार्ट करता हूँ सेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है आपको, मैं आपको बताऊं कि मुझे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा. ओके, so for that I will use the structure wizard. ठीक है, so from the structure wizard I will use the frame model like wave frame here. So you are seeing the model name, length, height, everything here. तो सबसे पहले जो मैं लेंथ की वैल्यू है वो मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ यहाँ पर आपके 20 एंड द हाइट इज ऑफ 45 मीटर. ओके, अगेन ये 20 and division along length I'm just going to do the 4 and division along the height I'm going to do it of 15. Okay, so now just I will transfer it. Now I have to customize the view also. Just wait. I will add the front view also. कुछ चीजें यहाँ से मुझे ऐड करनी पड़ेंगी. Front view I have to add the isometric view also. Okay, चलिए मैं सिर्फ इतनी चीजों से ही स्टार्ट करता हूँ जिसकी रिक्वायरमेंट होगी. या तो मैंने करंटली इसको फ्रंट व्यू पे जैसे यहाँ पे अरेंज किया. नाउ आई विल ऐड द प्रॉपर्टीज. So from the properties I'm just going to do the define option first. Yeah, so from the define I'm going to do the rectangular. For the column and beam we have to provide different type properties. So here that is you are saying that it is a 45 meter height structure. That's why मुझे थोड़ी सी प्रॉपर्टी यहाँ पर ज्यादा प्रोवाइड की हुई है. Okay, so now from the select menu I will add the beams which are parallel to Y and assign this value to the selected beam. Then for this I have to select beam parallel to X and Z. Okay, then I will assign it to the selected beam. Now I have to add the support. I will create a fixed support here and I have to add this fixed support to all bottom nodes. Now I have to add the loading. So from here let's read very carefully. So first of all I have to define that definition. Okay, मुझे यहाँ पे definition देनी पड़ेगी. As मैंने कि आपको जैसा बताया हुआ है कि यहाँ पर आपको definitions पहले देनी पड़ती हैं. Otherwise you know that कि in the specific analysis आपने अगर
डेफिनेशन बाद में आप देने जाओगे तो इट विल नॉट पिक द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन को पिक नहीं करेगा, इट विल शो यू द एरर, ये आपको एरर मतलब एक नोटिफिकेशन ही आ जाएगा बिफोर डूइंग द एनालिसिस, एनालिसिस करने से पहले ही आ जाएगा। वहां पे लिख के आएगा कि यू हैव टू डिफाइन द सिस्मिक, you have to define the seismic load case details before applying any other load case, है ना। तो इस टाइप की आपको क्या एक यहाँ पे वार्निंग आपको मिल जाती है, ठीक है। नाउ आई हैव टू ऐड माई अनदर आईडी, मैं उसको भी ऐड कर ले रहा हूँ, जस्ट वेट। क्योंकि मुझे कुछ आपको इमेजेस शो करनी है, दैट्स वाई। 715421112। Yeah, people are still joining. Yeah. Okay. So now state, come to the software again. वापस हम सॉफ्टवेयर पे आते हैं। Yeah. So first of all, I have to add the definition here. For that, just click on definition. Then I will add the seismic definition from here. Yeah, I'm getting few messages. Yeah. ठीक, चलिए। So first of all, from the seismic definition, click on add. तो जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया हुआ था कि यहाँ से आपको सबसे पहला काम करना होगा, आपको पिक करना होगा इंडियन डिजाइन कोड के अकॉर्डिंग। मैं लेटेस्ट कोड पे वर्क कर रहा हूँ 2016 पे। देन आई डोंट नो द एग्जैक्ट जोन वैल्यू, so आई विल क्लिक ऑन जनरेट। ओके, तो मैं यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करूंगा एंड आई विल डू इट अकॉर्डिंग टू द जोन वाइज। आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट फॉर द जोन 4। ओके, एंड यहाँ पर मैं आई विल यूज द SRMF, okay, Special Movement Resisting Forces, that is here. The value for that will be 5. Okay, then I will do it for the important building. So for that, factor I, that is the importance factor, it will be 1.5, and the soil type is medium, and damping ratio will be 5%. That means कि जब आपका लास्ट में अप्लाई होके आएगा तो it will be of 0.05, ठीक है, ये पॉइंट आपका 0.5 पे आ जाएगा। ओके, सो नाउ आफ्टर दैट I will add it. Okay, then it will ask for the member weight. So here I'm just going to add the weight of wall also, ठीक है। मैं यहाँ पर walls का weight भी ऐड करने जा रहा हूँ। That is your seismic and that is your response spectrum. So in the response spectrum basically हमें करना क्या है कि response spectrum के अंदर हमें ऐड करना होगा आपका स्ट्रक्चर्स का वेट। वेट का रिस्पॉन्स हम यहाँ पर देखते हैं, स्ट्रक्चर का जो वेट है उसका उसका जो रिस्पॉन्स, वेट की जैसे जो रिस्पॉन्स होगा ड्यू टू द सीस्मिक एनालिसिस, इन द सीस्मिक एनालिसिस ड्यू टू द अर्थक्वेक। तो ये मुझे यहाँ पे मेजर करना है। तो एज यूजुअल 45 मीटर की बिल्डिंग है तो आपकी 9 इंच से कम की वॉल तो होगी ही नहीं वहाँ पर। दैट मीन वेट जो आपका अप्रोक्सीमेट ये मैंने यहाँ पर आई विल एड इट टू द 13, ठीक है। एंड yeah, so now and starting distance will be, मैं आपका जब 3 मीटर से स्टार्ट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 3 मीटर एंड द लास्ट वैल्यू विल बी 45 मीटर। ओके, just click on add.
Then after I have to add the floor weight. So here I will add the dead load only, है ना? That means the weight of floor only. क्या बात है, अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं. ऑलमोस्ट 25 मिनट क्लास हो गई है. Yeah. So the range will be here again. Yeah, sorry, it is correct. Yeah, y के along मेरा 3 से लेके 45. मैं कर रहा हूँ, अभी भी रिक्वेस्ट आ ही रही है स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग की. Okay, so all the values I'm just adding here the positive values. You know that कि मैंने ये पॉजिटिव ही क्यों यहाँ पे ऐड किया है ना? So just click on add. So now ये सारी वैल्यू ऐड करने के बाद में now you can close it. And ये तो member weight है, you have to select, you have to assign it X and Z. Okay, now assign it to the selected beam. Now so you are seeing that कि यहाँ पर मैंने आपका लोड केसेस जो थे, डिटेल्स थी, मेंबर वेट, फ्लोर वेट, एवरीथिंग आई जस्ट एडेड. नाउ मुझे यहाँ पर लोड केस डिटेल पे अब आना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम ऐड करेंगे आपका अर्थक्वेक लोड, है ना? दैट विल बी योर सीस्मिक. आई विल गिव द नेम E2. ठीक है, मैंने इसका नाम अर्थक्वेक किया है. So here in the earthquake load मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर का पहले तो वेट देना पड़ेगा. That means the response of structure in all directions. Okay, due to the seismic, you know that कि आपका जो रिस्पॉन्स होगा, स्ट्रक्चर जो होगा, उसका वेट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इन ऑल द डायरेक्शन. दैट विल बी एक्स वाई जेड, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स जो वाइब्रेशन होंगे तो वो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों जगह पे उसका वेट का हमें रिस्पॉन्स चेक करना है. तो आई विल एड इट. मैं यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर देने जा रहा हूँ उसको मैंने यहाँ से किया 1, positive 1, just because I am adding it in the seismic एनालिसिस में मैं इसको ऐड कर रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू को दिया x पॉजिटिव. ठीक है, सेम आई हैव टू ऐड इट अलोंग द y एंड आई हैव टू ऐड इट अलोंग द z, है ना? तो स्ट्रक्चर का जो खुद का वेट है वो x y z तीनों के अलोंग मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा. देन आफ्टर सेम मुझे वही एस्पेक्ट में मेंबर लोड भी देना पड़ेगा. दैट वाज 13 किलो न्यूटन. ठीक है, यहाँ वैल्यू सारी पॉजिटिव. और अगेन सेम वैल्यू gx, gy और gz तीनों के लॉन्ग. फिर मुझे यहाँ से देना पड़ेगा फ्लोर लोड ऑल्सो. तो फ्लोर लोड की वैल्यू कितनी थी? 3.75 और अगेन रेंज की वैल्यू 3 से लेके 3 to 45 था. along the global x, then global y and global z also. तो global x, y, z तीनों पे लेके मैंने यहाँ से ऐड किया, आप देख सकते हैं इस तरीके से. और इन सबको आप क्या करोगे? असाइन टू व्यू करोगे सेल्फ वेट को. ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैंने एक्स वाई जेड में तीनों में क्यों ऐड किया है? जस्ट बिकॉज ड्यू टू द अर्थक्वेक जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो आपका तीनों एक्स डायरेक्शन में रिस्पॉन्स उसका जनरेट होगा. ठीक है, वाइब्रेशंस जो होंगे वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में होंगे. इस वजह से ये हमें तीनों डायरेक्शन में मुझे ना भाई ये नहीं कह सकते कि सीस्मिक की वजह से ऐसा कर रहे हैं. बेसिकली ड्यू टू द सीस्मिक जो सबसे का रिस्पॉन्स होगा ना वो आपका तीनों डायरेक्शन में हमें मेजर करना है ना? आपके क्या तो वाइब्रेशन तीनों डायरेक्शन में चलेंगे आपके,
ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स में या वाई में जाएगा। जब स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स, जो सिस्मिक वेव होंगी वो तो आपके दो ही डायरेक्शन में चलेंगी, एक्स या वाई, सॉरी एक्स या जेड, जो कि मैंने स्टैटिक एनालिसिस में किया था, वहां पर मैंने एक्स और जेड के लॉन्ग ही किया था। बट यहाँ पर ये जो हम मेजर कर रहे हैं ना, ये है आपका क्या, कि ये आपका स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स, मुझे स्ट्रक्चर का जो वेट है उसका रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप, इसीलिए जो वैल्यूज देख रहे हो ना यहाँ पे आप, मैंने 13 फुट की और 3.75 फुट की, ये दोनों चीजें जो है आपकी स्ट्रक्चर का वेट है, वॉल का वेट और उसके फ्लोर का वेट, और साथ में उसका सेल्फ वेट भी, दैट मीन द फ्रेम का वेट। ठीक है, इसलिए मैं इसको एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मुझे यहाँ से ऐड करना पड़ता है। क्लियर है? अब ये सब चीजें करने के बाद में मुझे अगला जो ऐड करना है इसी अर्थक्वेक के अंदर, दैट विल बी योर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। तो हियर इज योर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा। तो यहाँ से आप देखेंगे, मैं यहाँ से इंडियन कोड पिक करूंगा, या IS 1893 2016। अच्छा, अब यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन मेथड होता है, SR, SS, ABS, CQC, TEN। तो ये क्या चीज होती है? तो बेसिकली ये जो होता है आपका, इसका SRSS में होता है स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, ABS में होता है एब्सोल्यूट सम, CQC होता है क्वाड्रेटिक काप जो आपका जो रहता है ना। तो इस तरीके से ये इनका यूज होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, कुछ हमारे कॉम्बिनेशन मेथड होते हैं अकॉर्डिंग टू द लोड केसेस, तो वो हम यूज करते हैं। तो नॉर्मल हमारा जो स्ट्रक्चर का ये होता है कंक्रीट का स्ट्रक्चर, तो उसके लिए हम जो कॉम्बिनेशन मेथड यूज करते हैं वो हमारा SRSS होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम यहाँ से जो सॉइल आपकी मैंने वहां पर क्या ली थी, मीडियम सॉइल, याद है? तो मैं यहाँ से मीडियम सॉइल लूंगा। तो अकॉर्डिंग टू मीडियम सॉइल ये आपका एक्सेलरेशन होते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, आपके एक्सेलरेशन देखिए अलग अलग टाइम पीरियड पे, वो अलग अलग जो स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स होता है वो एक्सेलरेशन की वैल्यूज यहाँ पे आती है निकल के। ठीक है, तो वो होगा हमारा, तो अलोंग। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं इसको हम यहाँ से एक्स और वाई, एक्स और जेड के अलोंग इसको आप ऐड करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे ऐड किया। नाउ आई हैव टू एनालाइज द स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर को यहाँ से एनालिसिस करते हैं। या सो सेम कि आपको एक वार्निंग तो एटलीस्ट मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं आपको आउटपुट जो एक वार्निंग आई है मैं वो आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को रनिंग आउट ऑफ टाइम का एक मैसेज आ गया होगा, या द मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। कोई बात नहीं, चलिए आप उसको क्लोज कर सकते हो अगर आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है तो। या नाउ, तो चलिए आउटपुट देखते हैं। जो वार्निंग आती है बेसिकली मैंने आपको बताया था, अगर याद हो आपको, कि ये वार्निंग किस चीज के लिए होती है। ये आपकी जो वार्निंग होती है ये होती है आपकी IBC, है ना, इन सारी चीजों की पर्पज से होती है। हाँ, और दूसरी चीज आपको यहाँ पे देखो जो वार्निंग है, ये अगर है ना सम मोड्स आर क्लोजली स्पेस, तो आपका SRSS की जगह पे CSM मेथड भी आप यूज कर सकते हो, इस चीज की वार्निंग होती है। तो करंटली मैं यहाँ पर इसको कंसीडर जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ इसके रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब हम देखते हैं जरा आउटपुट का। हाँ, मैंने आपको क्लोज कर दिया है। अब आउटपुट में हम देखते हैं क्या क्या चीजें हमें यहाँ से मेजर करनी होती है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम इसके ऊपर। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर दें। ठीक है, एक मिनट लीजिएगा। चलिए, अच्छा, मीटिंग जैसे ही ये क्लोज हो जाए ना तो आप लोग प्लीज इसको रीज्वाइन कर लेना, है ना। वैसे तो अभी 8 मिनट है एटलीस्ट। चलिए, तो देखिए सबसे पहले आपका ये एक आइगन सोल्यूशन आता है। ठीक है, आइगन सोल्यूशन में आप देखेंगे टोटल 6 मोड है यहाँ पर आपके, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही था कि रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम जो होता है ना, उसमें आपके टोटल 6 मोड होते हैं। हमें 6 मोड पे ही वर्क आपको देखना पड़ता है, स्ट्रक्चर का एनालिसिस होता है। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स
आप देख रहे हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसीज की वैल्यू आ रही है एट 5.40973 सेकेंड पे आपका क्या रिस्पॉन्स है। तो ये अलग टोटल 6 पॉइंट पे आपका ये मेजर करता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद एक आपका आता है, ये देखिए रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम की डिटेल्स आती हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल जो लोड की वैल्यू है अलोंग मोड 1 पे आपका टोटल वेट अलोंग एक्स या अलोंग वाई, ये देखिए सारी वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी कि कितना है आपका, देख रहे हैं ये। तो यहाँ से आप जनरलाइज वेट कितना निकल के आएगा स्ट्रक्चर का, अलग अलग टाइम पीरियड पे स्ट्रक्चर का वेट कितना आपका ये निकल के आ रहा है, ये वैल्यूज मिलेंगी। फिर एक होता है मॉडल बेस एक्शन। मॉडल बेस एक्शन आप देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप तो एक सम अप मिलेगा आपको यहाँ पर, या हियर इट इज, यहाँ पर आपको सम मिलता है मास पार्टिसिपेशन के अंदर। मॉडल बेस एक्शन, तो ये है आपका मोड पार्टिसिपेशन फैक्टर, ठीक है। तो जीरो टाइम पे तो ऑब्वियसली वो जीरो ही था, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइम पे टोटल से कितना वेट टोटल उसने मास ने पार्टिसिपेट, मतलब कितने पे आपका इफेक्ट आएगा, वो वैल्यूज यहाँ से आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल वैल्यूज आपको मिलेगी। और एक चीज जो और होती है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, है ना, अगर याद हो आपको, तो टाइम पीरियड वगैरह की वैल्यूज, ये सारी चीजें भी यहाँ से आपको मिल जाती हैं। आपको हो सकता है सर्च करनी पड़े, मे बी। ये है टोटल आपका SRS का ईयर सोर्सेस बेस ईयर वैल्यू। अच्छा, और पोस्ट प्रोसेसिंग पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर का चेक कर सकते हो मोड्स। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे, इसके लिए है ना, मुझे मोड्स के लिए शो करने के लिए आपका स्ट्रक्चर को लगाना पड़ेगा। जस्ट वेट, मुझे आइसोमेट्रिक व्यू में लगाना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाइएगा। मैं इसको लगा देता हूँ इस तरीके से ना। तो अब मैं आपको पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर एनिमेशन पार्ट में स्ट्रक्चर का मोड, अलग अलग मोड पे, जो टोटल 6 मोड हुए हैं, वो अलग अलग मोड पे आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, दैट इज अलोंग द, आपका ये जो मूवमेंट हो रहा है ये जेड एक्सिस के अलोंग दिख रहा है आपका, ठीक है। ये एनिमेशन के अंदर आपको जो दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को आप और भी देख सकते हो, डायनेमिक में डायरेक्टली भी देख सकते हो, हियर इट इज। तो ये आपका जो डायनेमिक में वैल्यू देख रहे हो, दैट इज द ड्यू टू द मोड 1। आप देखिए मोड यहाँ से 2 पे इफेक्ट देखना चाहोगे, दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना। फिर मोड 3 इस तरीके से आपका, ये आपका मूवमेंट के अलोंग देखिए चल रहा है, ट्विस्ट होंगे आपके, है ना। तो ये अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग जो टोटल 6 मोड बनते हैं, स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स आपको इस तरीके से दिखेगा। अगर आप इसका एनिमेशन देखना चाहते हो हर एक मोड पे, तो वो भी आप देख सकते हो इस तरीके से। जैसे ये घूम रहा है, ये था 6 के लिए, ये था नोट 1 के लिए, देखिए। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, देखिए ये है मोड 3 के लिए, ये देखिए द मोमेंट, दैट इज द मोड 4 ना। चलिए, ठीक। तो ये वैल्यूज होती हैं आइगन सोल्यूशन वैल्यूज, ये सारी चीजें आपको यहाँ से कंसीडर करनी पड़ती हैं, ओके। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये था आपका रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस। आफ्टर द रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस, अब जो मैं टॉपिक आपका स्टार्ट करना चाह रहा हूँ वो होगा आपका स्टैट फाउंडेशन,
तो बिफोर स्टार्ट फाउंडेशन, इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी भी पड़ेंगी कि हम फाउंडेशन में क्या क्या डिज़ाइन करते हैं, कैसे चीज़ें कर सकते हैं। तो फाउंडेशन के बारे में मैं आपको एक पीपीटी शो करना चाहूँगा। जस्ट वेट, आई हैव टू चेंज द होस्ट फर्स्ट, देन आई विल शो यू। ठीक है, जस्ट वेट।